Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. MBA CET 2022 is just round the corner now. If it is conducted on 24th, 25th, 26th of August, then we have 40 days for the exam. Now is the time that you should be scoring 120 marks minimum to get into JBIMS. है ना? Next 40 days में 10, 15, 20 marks बढ़ाओगे and you will land into JBIMS और SIMSTEC. ठीक है ना? But अभी आपको 120 marks score करना ही होगा. So how to score that 120 marks? So what are the different strategies used by toppers? है ना? ये मेरी strategies नहीं है. We have been mentoring students. जो हमारा one-on-one mock analysis का program है, we have been doing that. And उससे जो अलग-अलग strategies हमको पता चलती है, दो strategies जो common strategies है, we are going to discuss that. तो 10 unique strategies है, which we are going to discuss. This strategy is applicable for exam pattern which was conducted 2 years ago, that is CET 2020, जहाँ पे QA के 50 क्वेश्चंस है, BA के 50 क्वेश्चंस है, LR के 75 क्वेश्चंस है, नॉन वर्बल के 25 क्वेश्चंस है, सेक्शन वाइज डिवीजन है ना. अगर तो ये जो हमारे 10 स्ट्रेटेजीज है, ये इस पेपर पैटर्न के लिए है. वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर आल्सो द पेपर पैटर्न विल हैव सेक्शनल बाइफर्केशंस, है ना. मतलब QA के 50 क्वेश्चन, फिर VA के 50 क्वेश्चन सेपरेट रहेंगे. दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. अगर पिछले साल के हिसाब से पेपर आया जिसमें ऑल दी क्वेश्चंस आर जंबल्ड अप, तो उसके लिए भी अलग स्ट्रेटेजी है. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल. ठीक है, बट एक्सपेक्टेड तो है कि 200 क्वेश्चंस सेक्शनल बाइफर्केशन के साथ आएंगे. दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. इफ यू आर लुकिंग फॉर MBA CET क्रैश कोर्स, the last batch of crash course is going on in our academy. All the sessions will be taken by me or Aditya sir and Apurva ma'am. All three of us have scored more than 99% in the CET exam. You will not have many students in your batch. The batches can be conducted in online and in classroom mode both. Books will be provided to you. A mobile app will be provided to you. National level test series will be provided to you. Then one-on-one mock analysis, which is our USP, wherein we help student develop the strategy for the exam. So यही उन्हीं strategies में से कुछ एक 10 strategies मैं आपको आज बताने वाला. ठीक है. So we help student develop their strategy and it is done on one-on-one basis, and it definitely helps students increase their score by 5 to 10 marks. Then doubt solving sessions are conducted, daily quiz are provided to you, all important updates are provided to you, and all of this in the lowest fee in the industry. So the fees for this crash course is 7,000 rupees, in which you will be getting books, mobile app, test series, mock analysis, all of these live sessions, everything will be provided to you. Coming to the strategies, now there are few assumptions which we are doing over here, that few conditions which we are making over here, that we are not going to take it as a 150 minutes test. We are going to divide it into 7 small tests. One is of LR, second is of puzzle, third is of non-verbal reasoning, fourth is of quantitative aptitude, fifth is of data interpretation, sixth is of verbal ability, and seventh is of reading comprehension. And these are 7 different tests we are going to divide it into. These tests, I mean, the reason why we are doing this, the first reason is that you will be able to allocate sufficient amount of time to all these tests. And other psychological reason behind this is that when, so if you must have observed, when you are about to finish the test, जब 130-140 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट 20 मिनट बचे रहते, you get a good anxiety over here. I am not saying a bad anxiety, है ना, good anxiety. एक आपकी efficiency बढ़ जाती है आखिरी के 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, है ना. तो that efficiency helps you score good. वो आखिरी के वो 10-15 मिनट में ही आपके 5-6 क्वेश्चन सही होते हैं, वो उसी में आपका अच्छा स्कोर होता है. तो we want to have that anxiety, we want to have that good efficiency at the end of every small test. ठीक है ना. तो ये 30 मिनट्स का टेस्ट है, तो 25 मिनट्स हो गए, तो आखिरी 5 मिनट्स के लिए वो एफिशिएंसी किक करेगी, एंड वो आखिरी 5 मिनट में आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड खत्म करोगे. फिर ये 35 मिनट्स है, फिर से आखिरी 5 मिनट्स में
you will, that anxiety will kick in, है ना, that efficiency will kick in, and आप बहुत अच्छे से efficiently question solve करोगे, है ना. तो we want to have that efficiency every now and then in the exam, ठीक है, not only in the end of the paper. Other thing is we are expecting कि हर एक जन पूरे 200 क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा, है ना. If you are not able to solve all 200 questions, then you are a fool, है ना. There is no better way to say this. If you are not able to solve all 200 questions, there is no excuse, है ना. अगर आप बोलोगे सर मेरे से टाइम का ध्यान नहीं रहा एंड मेरे से छूट गए, आखिरी 10 क्वेश्चन मार्क करना छूट गए, 20 क्वेश्चन मार्क करना छूट गए, वी कैन नॉट हेल्प यू इन दैट. इट इज एक्सपेक्टेड कि आप पूरे 200 क्वेश्चन सॉल्व करके आए, ठीक है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एज यू मस्ट बी अवेयर, ठीक है. So these are the 2-3 things that we are taking into consideration. We are dividing the paper into 7 small tests and we are solving all 200 questions. Our target score 1 month 40 days before the exam is 120 marks, है ना. अभी आपको 120 marks पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है. How to do that? If you are strong in LR and decent in all other sections, so start with the LR section. Target 30 questions in 30 minutes and your target score is 25 marks. Then you go to puzzles, you solve 35, you dedicate 35 minutes and try to score 20 marks over here. Then non-verbal reasoning, again one more point which we will keep in mind कि non-verbal reasoning मेरा weak हो ही नहीं सकता, है ना. It is the easiest section, easiest 25 questions on in the paper, है ना. वो 25 में से 20 मार्क्स तो मिनिमम लाना है ना. अगर वो 20 मार्क्स नहीं आते हैं देन प्रैक्टिस करो उसके लिए, डेली का 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करो, यू विल बी देयर, है ना. नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत इजी होता है, ठीक है. सो 20 मार्क्स को हमको वहां पे लाना ही लाना, ठीक है. देन एंड दीज 20 मार्क्स आर मिनिमम, इससे ऊपर जितना लाओगे उतना बेटर. मूविंग फॉरवर्ड टू क्यूए सेक्शन. नॉन वर्बल रीजनिंग के बाद क्यूए सेक्शन में आप जाओगे. 15 क्वेश्चंस का टारगेट है, 15 मिनट्स में आपको 12 मार्क्स स्कोर करने. Followed by that, you move to data interpretation section, where you are expected to solve 3 sets in 20 minutes and score 15 marks. Followed by verbal ability, 30 questions. Time allotment is 18 minutes and 20 marks is the target score. And then you can solve 2 RCs and try to score 8 marks over there. Where total you will be able to score 120 marks. है ना? Now, this is the order in which you are expected to write the paper, ठीक है ना. So this is one of the common strategies used by many toppers, है ना. तो this is the order, है ना. I don't even break the order, है ना. LR करो, फिर puzzles करो, फिर NVR करो, फिर QA करो, फिर DI करो, फिर VA करो, फिर RC, है ना. You must have understood this. Now I'll explain you one more table. If you are strong in LR but weak in QA and DI, then start with LR section. Now that you are going to skip QA section, then you will have to cover up those marks in LR and VA section. So try to understand this thing. There will be few students who would come in doubt कि यार QA section पूरा छोड़ दे क्या, है ना, आगे के इसमें RC पूरा छोड़ दे, है ना. तो छोड़ो, है ना. बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये मेरी स्ट्रेटेजी है. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. ये काफी सारे लोग आप देखोगे जो क्यूए सेक्शन छोड़ दिया, स्किप कर दिया. क्यूए सेक्शन में डीआई नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्यूए सेक्शन आपने छोड़ दिया, फिर भी यू आर इन जेबीआईएमएस, फिर भी यू आर इन सिम3, ठीक है ना. आरसी हाथ भी नहीं लगाया आरसी को, फिर भी हमने सफिशिएंट स्कोर कर लिया एंड यू आर इन जेबीआईएमएस और सिम3. तो इट इज पॉसिबल, है ना. डोंट doubt the strategy, try to apply the strategy. I'm not saying that this is the final strategy which you have to apply in the exam, but try to apply this strategy in the mocks right now to reach this number, at least 120 marks पे तो पहुंचने के लिए हमको ये strategy लगानी है. Obviously 120 marks कुछ plus minus 5 होगा, क्योंकि level of difficulty of the mock will decide वो +5 और -5, है ना. क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अगर आपको एक टॉपिक आता है अच्छे से तो वो आता है ना. सो
यू शुड बी इन पोजिशन टू लीव द क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि वो डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी से ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए, ±5 मार्क्स का फ्लक्चुएशन होना चाहिए, ठीक है। बट अभी 120 मार्क्स पे पहुंचने के लिए देयर माइट बी फ्यू सेक्शंस जो आपको स्किप करने पड़ेंगे, एंड इट इज पॉसिबल टू स्किप फ्यू क्वेश्चंस एंड स्टिल गेट इनटू अ गुड कॉलेज, ठीक है ना। एज वी हैव डिवाइडेड द पेपर इनटू 7 different parts and you are strong in LR and weak in QADI, you are expected to start with LR section 35 questions target करके 30 का टारगेट स्कोर रहेगा आपका इसमें 30 in 35 minutes. Followed by that you get into puzzles जिसमें you are expected to solve 6 sets, है ना। Now that you are leaving out on QA section 20-25 questions जो QA के आएंगे, QA डेटा सफिशिएंसी एंड डेटा कंपैरिजन के वगैरह आएंगे, वो तो आप छोड़ने वाले हो ना। अगर आप छोड़ने वाले हो तो फिर वो कवर करना पड़ेगा कहीं तो भी, सो यू विल हैव टू सॉल्व फ्यू एक्स्ट्रा पजल्स जो 40 मिनट्स में यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व 6 सेट्स एंड गेट 25 मार्क्स ओवर देयर, है ना। देन नॉन वर्बल रीजनिंग, again third section non-verbal reasoning, minimum score expected is 20. Then fourth section is QA which you are skipping completely, है ना। fifth section you go to data interpretation, you find out 2 easy sets of DI and try to get at least 8 marks over there. Sixth you get into VA section, you try to cover maximum marks over here by you try to get 25 marks over here, and then you solve 3 RCs, okay. So this is the order in which you should go, and here it is recommended that you skip QA section. अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है सॉल्व कर लो साइड बाय साइड, है ना, बट देन रिकमेंडेड है कि आप स्किप करो। क्यों स्किप करो? वैसे भी आपको QA सेक्शन आता नहीं है, सो व्हाई टू इन्वेस्ट टाइम इन समथिंग व्हिच यू आर नॉट गुड इन, डेडिकेट दैट टाइम इन समथिंग व्हिच यू आर गुड इन, है ना। दैट इज व्हाई वी आर रिकमेंडिंग दैट यू स्किप QA सेक्शन, ठीक है। देन इफ यू आर गुड इन LR and weak in VARC, this should be the strategy which you should apply. Next is QADI. If you're strong in QADI and we decent in all other sections, this is the strategy. Strong in QADI, weak in LR or puzzles, this is the strategy. Strong in QADI and weak in VARC, this should be the strategy. Then if you're strong in VARC, decent in all other sections, ऐसे कुछ करके देखो, है ना। गो बाय दिस ऑर्डर, ट्राई टू अलोकेट दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, आपका स्कोर आना चाहिए, है ना। इफ यू हैव गुड इनफ बेसिक्स एंड यू आर सफिशिएंटली सीरियस अबाउट द एग्जाम, ठीक है। VARC एंड यू आर वीक इन VA, LR एंड पजल्स, है ना। तो यू स्टार्ट विथ VA, देन RC, नॉन वर्बल रीजनिंग, LR एंड पजल्स, यू सॉल्व थोड़े बहुत QA एंड DI, ठीक है ना। यू एक चीज और भी समझो कि यार LR में अगर आप वीक हो तो बहुत ज्यादा वीक नहीं हो सकते, है ना। एटलीस्ट 50% LR तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ यू आर गुड इन VARC बट वीक इन QADI, दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी, है ना। इफ यू ऑब्जर्व वी आर स्किपिंग DI ओवर हियर क्योंकि नहीं आता है अपने को DI या फिर क्वांट में से कोई तो भी एक तो स्किप करना ही होगा, है ना। तो ही जाके आप वो बचा हुआ टाइम दूसरे इसको अलोकेट कर पाओगे, ठीक है। सो दीज आर द 9 स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट है अपनी एक फ्लक्चुएशन स्ट्रेटेजी। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी जो जनरली वी डोंट रेकमेंड टू द स्टूडेंट्स, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको ये स्ट्रेटेजी वर्क कर जाती है ना, एंड दिस इज नोन एज अ फ्लक्चुएशन स्ट्रेटेजी। फ्लक्चुएशन स्ट्रेटेजी में पहले एक बंदा 2 पजल सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद 2 DI के सेट सॉल्व कर लेगा, फिर NVR सॉल्व कर लेगा, फिर VA सॉल्व कर लेगा, फिर से 2 पजल्स आएगा, फिर LR सॉल्व करेगा, फिर से 2 पजल्स करेगा, फिर 2 DI के सेट करेगा, फिर क्वांट करेगा, ऐसे फ्लक्चुएट करते हुए जाए, है ना। तो अभी इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है कि यार यू आर नॉट स्टक, आप एक मेंटल ब्लॉक में आ जाता है कि अगर आप पूरे के पूरे पजल सॉल्व कर रहे हो तो एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि यार नहीं सॉल्व हो रहा है, या फिर वो मेंटल ब्लॉक से निकलने के लिए यू कैन यूज दिस फ्लक्चुएशन स्ट्रेटेजी, है ना। इसमें एडवांटेज ये है कि आपका मेंटल ब्लॉकेज हटता है एंड यू आर कॉन्स्टेंटली स्विचिंग बिटवीन दी सेक्शंस एंड उससे आपको कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बहुत बढ़ता है। बट द अदर थिंग इज, जो डिसएडवांटेज है इस स्ट्रेटेजी का,
is that कि a lot of time is wasted in finding out the question, है ना? A lot of time is wasted in finding out, क्योंकि पता तो नहीं है ना आपको कि कहाँ पे एलआर का पजल है। आप तो वो वहां पे जाके ढूंढोगे कि अच्छा ये यहाँ पे एलआर का पजल है, ठीक है ना? आपको पता नहीं है डीआई के सेट्स कहाँ पे, आपको पता नहीं है कि वर्बल में आरसी किधर है और वर्बल किधर है ना? तो वो थोड़ा सा फाइंडिंग आउट में टाइम चले जाता है। वेरी फ्यू, रेयरली 100 में से एक बंदा ऐसा दिखता है हमें जिसके ऊपर ये स्ट्रेटेजी वर्क कर जाती है ना? तो मे बी यू आर वन ऑफ दोस कैंडिडेट्स, एक बार ये भी ट्राई करके देखो, ठीक है? सो दिस इज व्हेन द पेपर इज बाइफरकेटेड अकॉर्डिंग टू दी सेक्शंस, है ना? मतलब क्यूए के सारे क्वेश्चन एक साथ, वर्बल के सारे क्वेश्चन एक साथ, ऐसा है। तो ये जो स्टार्टिंग की 10 स्ट्रेटेजीज बताई वो लगा सकते। अगर जम्बल्ड अप पेपर है तो फिर तो सिंपल सा है, 30 मिनट्स 40 क्वेश्चंस, है ना? 30 मिनट्स हो गए, तुम 40th क्वेश्चन पे रहने चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपने तुक्का मारा है या आपने सॉल्व किया है, कुछ भी हो जाए 40th क्वेश्चन पे आप रहने चाहिए, है ना? जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेटर, क्योंकि उतने आपके तुक्के कम हो गए, है ना? फिर वो तो स्पीड के ऊपर बात आ जाती है ना? तो 30 मिनट्स 40 क्वेश्चंस, फिर से 30 मिनट्स, जैसे 60 मिनट्स हो गए क्लॉक पे, आप 80th क्वेश्चन पे रहने चाहिए, है ना? दिस इज द स्ट्रेटेजी विच यू विल हैव टू अप्लाई, है ना? डिवाइड द पेपर इनटू स्मॉल टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स, ऐसे 5 छोटे छोटे टेस्ट में आप डिवाइड कर दो, एंड वो 5 छोटे छोटे टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स आप सॉल्व करते जाओ, एंड 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करते जाओ। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी विच यू कैन अप्लाई, ठीक है? So these are all the 10 and 11, and this is the 11th strategy that can be there to solve the paper, ठीक है? तो I hope this video is beneficial for you, because now is the time that you finalize your strategy, है ना? In the month of August you should be clear about the strategy, and फिर वो strategy clear होने के बाद उसके ऊपर 10-15 टेस्ट देंगे एंड फिर फाइनल टेस्ट देंगे, है ना? तो वो स्ट्रेटेजी फाइनलाइजेशन के टाइम पे अभी आप पहुंचने चाहिए, ठीक है? और कोई डाउट है और कुछ दिक्कत है अगर आपको, यू कैन कनेक्ट विद अस, वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन tarkashastra.co.in, or you can send a WhatsApp message on any one of these two numbers. Thank you so much. Jai Hind.